Hello guys, I am Asadullah Sheikh and this is my YouTube channel Sekho. In this channel I am solving problems from NCERT books, class 11 and class 12 physics books, and after solving these two books I will go to H.C. Verma. I will try to solve all the problems from H.C. Verma. Then I will try to solve all the problems from Reznik Halliday and I.E. Irodov. If you think that this channel is going to be helpful for you, you can consider subscribing this channel. और ये सारे चीज़ जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे सारे videos will be completely free of cost, so you can consider subscribing. So we have arrived now at question 3.10. If you are not following me, you don't know that I am actually solving all the problems from motion in a straight line, class 11 physics textbook, and we are now at question number 3.10. Many people may think that okay, there are tons of websites where you can get solutions, but those solutions sometimes are confusing and they are in written form, and I think when I am solving here I am giving you little more than what is given on those websites. Okay, I will try to convince you and I will try to give my perspective on these problems. And sometimes many times I am solving a single problem in 2-3 different methods to convince you, to make your understanding deeper. So if you have any confusion even after seeing those websites, you have seen the solution and you are not convinced, you can come to this channel and you can watch my solution and my explanation of the problems. Hopefully you will have better understanding. Okay, that's why I am actually solving these problems. 3.10, this is very easy problem, but because I am trying to make an encyclopedia of NCERT problems, so I'll cover every single problem, and most of the times you will get some new perspective in this problem. So even if it is easy problem, maybe if you watch this video, at least you will see two different methods to solve this question number 3.10d, and you will be in I hope that in a better position to deeply understand problems. So let us start. What is question 3.10? A player throws a ball upward with an initial speed 29.4 मीटर पर सेकेंड. सो एक प्लेयर है जो एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है और इसका इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया है 29.4 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन ए क्या पूछा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल. ये बॉल जब अपवर्ड मोशन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो तब इसका एक्सीलरेशन किधर है. ठीक है, एक्सीलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसका ऊपर काम कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो इसका जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन है towards the center of earth or in the downward direction. So answer is the acceleration is in the downward direction. If it is moving in the upward direction, so acceleration is in the downward direction. ऐसे लिख सकते हैं आप. या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज इन द इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इफ वी कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ये भी लिख सकते हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं इफ वी कंसीडर द अपवर्ड डायरेक्शन टू बी द
positive x direction, then the direction, can you see, direction, then the direction of acceleration is in the negative x direction. ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने बोल दिया क्यों, ताकि आपको पता चले कि एक डायरेक्शन को हम लोग बहुत सारा डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3.10a। अब क्वेश्चन नंबर 3.10b क्या बोल रहा है, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। ये जो बॉल है, ये बॉल का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। दैट्स वाई दिस बॉल का जो स्पीड है वो रिड्यूस होगा और भी रिड्यूस होगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, स्पीड या फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर वहाँ से फिर क्योंकि वो एक्सीलरेशन तो तब भी काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेलोसिटी अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ होना चालू करेगा, ठीक है। इसका स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा, तो टॉप मोस्ट पोजीशन में क्या होता है, 0 हो जाता है। सो व्हाट दे हैव आस्क्ड, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। सो बी का आंसर है, इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, इसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा, वो तो फिक्स्ड है, वो सारे जो इसका ट्रैजेक्टरी है all the times the acceleration is gravitational acceleration g which is around 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, g है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इवन दो द वेलोसिटी इज 0 एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, इसका एक्सीलरेशन है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दैट्स वाई इट्स वेलोसिटी विल चेंज। अगर एक्सीलरेशन नहीं होता तो इसका वेलोसिटी 0 फिक्स्ड रह जाता, लेकिन इसका एक्सेलरेशन है, दैट्स वाई इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो वेलोसिटी जी का वैल्यू हम लोग माइनस लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव एक्स अपवर्ड को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कंसिडर करते हैं तो इसको हम लोग -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रह जाएगा कांस्टेंट, तो बी हो गया। इसको अब मैं इरेज कर देता हूं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी पर, चूज द x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 सेकेंड, ओके, टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल at its highest point, vertically downward direction to be the positive x direction, positive direction of x axis, and give the signs of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion। अब क्या बोल दिया कि इसको आप ओरिजिन पकड़ लो, 0 पकड़ लो, ठीक है, और ये जो डाउनवर्ड साइड है इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पकड़ लो। और अगर सिचुएशन ऐसा है तो अपवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन के टाइम वेलोसिटी का साइन कितना होगा, वेलोसिटी का साइन, एक्सीलरेशन का साइन और पोजीशन इसका साइन क्या होगा, ये पूछा है। और डाउनवर्ड जब मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन में भी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन का साइन पूछ रहा है, ठीक है। गिव द साइंस। तो देखिए ये जो पार्टिकल का जो मूवमेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक,
ये तो जो ओरिजिन है इसको क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अपर मोस्ट पॉइंट को ओरिजिन बोल दिया, और इसका नीचे जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट है अपवर्ड मोशन में और डाउनवर्ड मोशन जो भी है, पार्टिकल इसी लाइन में रहेगा, तो इसका जो पोजीशन है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। देखिए ये पॉजिटिव होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से जीरो स्टार्ट हो रहा है और इधर पॉजिटिव है ना, तो ये होगा पॉजिटिव। तो पोजीशन तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा अपवर्ड मोशन में, और डाउनवर्ड मोशन में भी पोजीशन पॉजिटिव होगा, ठीक है, पोजीशन पॉजिटिव होगा। अब वेलोसिटी अपवर्ड जब मोशन है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि नीचे की तरफ है पॉजिटिव वेलोसिटी, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज नेगेटिव है। और एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ ही है, तो नीचे की तरफ है तो ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे की तरफ हम लोग पॉजिटिव मान लिया है, यहाँ पे बोल दिया है कि नीचे की तरफ आपको पॉजिटिव एक्स लेना है। और यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी ये पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड मोशन पॉजिटिव एक्स के तरफ है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या है? ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम 3.10 सी को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। अब चलिए प्रॉब्लम 3.10 प्रॉब्लम डी को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बोल दिया कि टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स। यहाँ पे मैं जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल दिया है, और एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना है बोल दिया है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस नहीं है हमारा इस प्रॉब्लम में, तो वो तो सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, यहाँ से जब बॉल स्टार्ट हुआ, बॉल को थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी था 29.4 मीटर पर सेकेंड, और ये इस बॉल के ऊपर एक एक्सीलरेशन है, बॉल का एक एक्सीलरेशन भी है, ठीक है। और यहाँ आके उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो हम लोगों को एक पता है फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। अब यहाँ पे v इक्वल टू 0 हो रहा है टॉप मोस्ट पोजीशन में, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 29.4, और a कितना है? ये है -9.8, और यहाँ पे t, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 29.4 बाई 9.8। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 3। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकेंड लग रहा है। अब वो सेम बॉल 0 से सेम एक्सीलरेशन के वजह से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में सेम टाइम लगना चाहिए, है ना। थोड़ा इंट्यूशन अगर आप लगाएंगे तो देखिए, वो जिस सेम एक्सीलरेशन के लिए इस वेलोसिटी से यहाँ से 0 हुआ, वो सेम एक्सीलरेशन से वो जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी 0 से फिर 29.4 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन टाइम भी सेम लगेगा, है ना। लाइक ये मिरर इमेज है, ये जो हो रहा है रिटर्न करने के वक्त भी सेम टू सेम हो रहा है इस पाथ में, ठीक है। तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा, टोटल टाइम जब लगेगा वो लगेगा 2t, दैट मीन्स 6 सेकेंड। ये हो गया 6 सेकेंड। तो टाइम पूछा, टाइम निकल गया, और कितना हाइट जाएगा ये भी पूछा है। तो कितना हाइट जाएगा, इसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। यहाँ पे v इज 0 है, u है 29.4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 9.8, और x निकलना है, x इज इक्वल टू कितना है 29.4 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.8। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप
तो कितना मिलेगा, ये हाइट मिल जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ये एक्सेप्ट किया और फाइनल वेलोसिटी को 0 किया, और इसमें डिस्टेंस कितना है निकल रहा हूँ। तो ये कितना निकलेगा आप थोड़ा कैलकुलेटर में करके देख लीजिए। आपको कैलकुलेटर करना चाहिए, कैलकुलेटर टाइप करना प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके आपका दिमाग में कैलकुलेटर सेट होगा और आपका हाथ भी फास्ट होगा और आपको कैलकुलेटर हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कितना होगा, ये होगा 44.1 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया वन मेथड। इसको हम लोग और दूसरे एक मेथड में भी कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग, या फिर अगर हम लोग x इक्वल टू ये ऐसे निकलते, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है वो पुट कर दिया 29.4 इंटू टी, यहाँ पे क्या पुट करूँगा 3 सेकेंड, क्योंकि हमको हाइट चाहिए। तो यहाँ पे 3 प्लस हाफ ए मतलब -9.8 इंटू 3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये भी मिलेगा 44.1 मीटर, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर करके देख लेना। ठीक है, और एक तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x को अगर हम लोग 0 मान लेते हैं, मतलब ये जर्नी स्टार्ट किया फिर हैंड में आया, तो टोटल जो डिस्टेंस से ट्रैवल किया वो कितना है 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 29.4, टी हम लोगों को पता नहीं है, निकलना है, प्लस हाफ ए इज -9.8 टी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग टी को सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे अगर टी को सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू मिलेगा 0 और 6, दो सॉल्यूशन मिलेगा। 0 इसलिए मिलेगा क्योंकि जब बिगिनिंग जब शुरू हुआ जस्ट उस टाइम में भी x 0 था, है ना, तो ये टी इक्वल टू 0 के लिए भी ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, और टी इक्वल टू 6 सेकेंड के लिए भी, मतलब पूरा जर्नी करने के बाद हाथ में आने तक जो टाइम लगा वो 6 सेकेंड है। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया प्रॉब्लम 3.10 में 2-3 डिफरेंट मेथड में बता दिया। आप लोगों को जो अच्छा लगेगा वो कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद का ब्रेन लगा के बहुत सारा डिफरेंट मेथड्स ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स है, आपको अगर अभी से नया आप फिज़िक्स सीख रहे हैं, या फिर आपको फिज़िक्स डीपली सीखना है, तो आप बहुत सारा डिफरेंट मेथड्स ट्राई कीजिए, और तब जाके आपका अंदर में वो चीज़, मतलब आपका दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि आपका कंट्रोल में है प्रॉब्लम्स। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए कमेंट करके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।